Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about January 2021 current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SHCGL and other competitive examinations point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So friends, let us we talk about 4th January 2021 current affairs. But before that, we will discuss some important news headlines related to the 4th of January 2021. So guys, today's first important news headline is a book titled Vahana Masterclass launched by Italian writer Alfredo Covelli. Alfredo Covelli, an Italy-based author, has launched his new book Vahana Masterclass for children and young audience. This book will be illustrated and published by Scholastic India. Alfredo had a keen interest in our Indian culture and mythology, which inspired him to write a story on Lord Ganesh for children. Now in Hindi, इटली के अल्फ्रेडो कोवेली ने अपनी वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का किया है विमोचन। इटली के प्रसिद्ध लेखक अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक वहाना मास्टर क्लास लॉन्च की है। इस पुस्तक को स्कॉलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया है। अल्फ्रेडो को भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि है, जिन्हें उन्होंने बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, वहाना मास्टर क्लास बाय अल्फ्रेडो कोवेली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ 4 जैन इज IOSCO, जैसा कि हमें पता है, IFSCA और IFESCA becomes associated member of IOSCO, the International Financial Services Centers Authority or IFSCA. I repeat, IFSCA or the International Financial Services Centers Authority has become an associative member of the International Organization of Securities Commission or IOSCO. I repeat, International Organization of Security Commissions. The headquarters of IOSCO is at Madrid, Spain. Now in हिंदी हमें पता होना चाहिए कि IFSCA बना है IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण और IFSCA अंतर्राष्ट्रीय प्रभुति संगठन और IOSCO और IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO का मुख्यालय हमें पता होना चाहिए कि मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, सोमा मंडल टेक्स चार्ज एज न्यू सेल चेयरमैन। हमें पता होना चाहिए कि सोमा मंडल हैज टेकन ओवर अ न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड और सेल with effect from Jan 1st, 2021. She is the first ever woman head of the body. She replaces Anil Kumar Chaudhary, who superannuated on 31st December 2020. She joined SEL in 2017 as the director commercial. हमें पता होना चाहिए कि सोमा मंडल ने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में संभाला है कार्यभार। सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड और सेल के नए अध्यक्ष पर पदभार ग्रहण किया है। वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख है। वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने 2017 में बतौर निदेशक वाणिज्य के रूप में सेल में ज्वाइन किया था। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, सोमा मंडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज India's first test bed Tihan launched at IIT Hyderabad. Union Minister of Education Ramesh Pokhriyal Nishank has virtually laid the foundation stone of
Tihan IIT Hyderabad, India's first test bed for autonomous navigation system, terrestrial and aerial both, at IIT Hyderabad. The Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation System or Tihan. I repeat, Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation System or Tihan for unmanned aerial vehicles and remotely operated vehicles at IIT or Indian Institute of Technology, Hyderabad. So, now in Hindi, India's first testbed Tihan launched at IIT Hyderabad. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम स्थलीय और हवाई दोनों के लिए भारत के पहले स्टेटवेड तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी। IIT हैदराबाद ने मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रण वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है तिहान और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब और ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स। आई रिपीट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स तिहान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज Sunit Sharma takes over as a new chairman and CEO of Railway Board. The Appointments Committee of the Cabinet has approved Sunit Sharma appointment as chairman and CEO of Railway Board, Ministry of Railways and ex officio principal secretary to Government of India. He took over in his new role with effects from January 1st, 2021. हमें पता होना चाहिए कि सुनीत शर्मा ने संभाला है रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार। हमें पता होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ सहित रेल मंत्रालय में प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 1 जनवरी 2021 से अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है। शर्मा ने इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह ली है, जो पुनर्गठन बोर्ड के पहले सीईओ भी थे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है सुनीत शर्मा जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज उमेश सिन्हा, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, नेम्ड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। हमें पता होना चाहिए उमेश सिन्हा हैज बीन नेम्ड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Sinha, a 1986 batch IAS officer or retired IAS officer, is at present serving as Secretary General in the Commission. हमें पता होना चाहिए कि उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है उपचुनाव आयुक्त के लिए। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त सिन्हा वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है उमेश सिन्हा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। So friends, now let us we talk about 4 January 2021 current affairs. The first question related to the 4 January is ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? Who topped the ICC टेस्ट rankings? So answer is न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी है? विच वैक्सीन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? सो आंसर इज कोविशील्ड। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कोविशील्ड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का विमोचन किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज द नेशनल पुलिस K9 जनरल इन विच स्टेट? So answer is capital of India, New Delhi. Next question number 4, किस राज्य में IIM सबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी? In which state PM Modi laid the foundation stone for permanent campus of IIM Sambalpur? So answer is state Odisha and capital of state Odisha is Bhubaneswar. हमें याद रखना है कि पीएम मोदी ने IIT संबलपुर में स्टोन परमानेंट कैंपस की स्थापना की है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, थॉबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी वॉज द थॉबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड? सो आंसर इज इम्फाल।
इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में थॉबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? हु स्टार्टेड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? सो आंसर इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? हु बिकेम द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट केरल? सो आंसर इज रेशमा मरियम रॉय। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। रेशमा मरियम रॉय इज द यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट ऑफ केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज ऑनर्ड विथ रामेश्वरम हिंदी पत्रिका अवार्ड 2020? सो आंसर इज रविश रंजन शुक्ला। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि रविश रंजन शुक्ला जी को रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर सिंगस स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने की घोषणा की है? नासा अनाउंस्ड द सेंडिंग ऑफ विच इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द सिग्नस स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? सो आंसर इज कल्पना चावला। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, कल्पना चावला जाएंगी सिग्नस स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल में स्पेस स्टेशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Director General of CISF? So answer is सुबोध कुमार जायसवाल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF इज सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? Central government approved the proposal for the purchase of how many high-performance patrol boats for the Indian Navy? So answer is 12 और 12. Important है, हमें याद रखना है। Next question, question number 13. Next question, question number 12 is पाकिस्तान सरकार ने किससे भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? Government of Pak approved the offer to buy Indian actors house in Peshawar. So answer is राज कपूर एंड दिलीप कुमार। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि राज कपूर और दिलीप कुमार के घरों को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को पाकिस्तान सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस देश में मौत की सजा को समाप्त करने के प्रावधान को पारित किया गया है? इन विच कंट्री पास्ड द प्रोविजन टू एबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट? सो आंसर इज कजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस क्वीन एलिजाबेथ में सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? इन विच क्वीन एलिजाबेथ वॉज अवार्डेड नाइटहुड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? सो आंसर इज लुइस हैमिल्टन। हमें पता होना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन में क्वीन एलिजाबेथ को नाइटहुड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी कौन सी बनी है? Which became the first two-wheeler company to cross the market capitalization of 1 crore rupees in the year 2020? So answer is Bajaj. Important है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान किया गया है? With which country in India exchanged the list of nuclear installations? So answer is Pakistan. Important है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष दिसंबर 2020 तक GST राजस्व कितना दर्ज किया गया है? सो आंसर इज 1.15 लाख करोड़ रुपए और 1.15 लाख करोड़ रुपीस। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है GST और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने किस नाम से ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है? इन व्हाट नेम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और KVIC launched ई-कॉमर्स पोर्टल? सो आंसर इज ekhadiindia.com। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बूटा सिंह का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? बूटा सिंह हैज डाइड, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज एन फेमस लीडर, और वह एक प्रसिद्ध नेता थे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है बूटा सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किस देश ने साल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया है? Which country banned the separate of food harmful to health from the year 2022? So answer is United Kingdom और UK। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि यूके ने 2022 तक के लिए हानिकारक भोजन के प्रसार का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Chief Justice or CJ of the High Court of Uttarakhand State? So answer is राघवेंद्र सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है राघवेंद्र सिंह चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उत्तराखंड स्टेट हमें पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तराखंड इज देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the new chief secretary of the state of Odisha? So answer is सुरेंद्र चंद्र महापात्रा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि सुरेश चंद्र महापात्रा is elected as the new chief secretary of the state of Odisha and capital of state Odisha is Bhubaneswar. Next question number 23 is the last question today. एनसीसी के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Director General of NCC or National Cadet Corps? So answer is तरुण कुमार। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी इज तरुण कुमार जी। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।